میں انشاءاللہ جڑا نا 20-25 منٹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ کھانا پینا بھی اپنا مکمل پروگرام جڑا بنانا ہے تو اس تو بعد ہی کروں ہاں جی بہت وڈی بھوک ہے تو قاسم او مرے کم تو آیا وا کم تو ہونے بہت وڈی بھوک ہے ہر ویلے پیٹ دا ہی خیال رکھنا دیکھو میں آیا وا تے کاشف بھائی بھی آ گئے نے ماشاءاللہ بابر بھائی بھی آ گئے نے ویکھیا جے کہہ دے ہن تینوں دیکھ کے آئے نے اتے ہور کنوں ویکھ کے آئے نے اوئے 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 خوش فہمیاں چیک کر دی دوویں بندے ویلے بیٹھے ہو تسی نہیں تو ویلے بیٹھے اسی کچھ کر ہی رہے سی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں کاشف بھائی Excuse me, sir. قادیانی حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار جس مقابلہ کسی ملا کو نہیں وہ ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے جو نبی کر سے بند نبی پاک دی امت کے پلے کی رہ گیا پھر بہت خطرناک سوال ہے ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے خطرناک گل ہے ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے پوسٹنگ نہیں ہونی ہے کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا میں نبیاں کے نام لوگوں کو کہ مینوں منو یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا کافر ہے اے گل نہیں اے ختم یہ کی ہے منصب نبوت مگر ڈگری مرتبہ کمال سب مضبوط امت فیض نہیں بند یار نبوت دائمان کرنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے السلام نے کئی ایک خطوط اور اشتہار اندرون اور بیرون ممالک مخالفین اسلام اور دیگر مذاہب لوگوں کے پاس بھجوائے کہ وہ 1 سال تک قادیان میں آ کر رہیں تا اللہ تعالی صرف میں ہی جواب دے سکتا ہوں ایک تو انہاں چ میں بہت ہے یار اے بھی ادے چ بھی تے ادے چ دے وچ بھی ایک بکری دی میں تے ایک مرزا جیلمی دی میں توبہ 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 ابھی میں عقل سے بات کر تو آپ نقل مانتے نہیں ابھی میں آپ نے نحو سر پڑھا ہے ہاں پڑھا ہے قاسم کو کھا کے پڑھا ہے اندر پہلے روٹی یہاں کھا خاتم کیا ہے اسم اعلیٰ آ جائے علم الصرف کی وہ آ جائے اسم اس میں اعلیٰ اعلیٰ ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا آپ معنی کریں مہر اعلیٰ ہے کیا ہوتا ہے مہر کا مطلب آخری ہوتا ہے یہاں مہر کا مطلب پہ ختم نبوت کا سلسلہ خاتم میں جو النبی دیکھا کرو کہ جب کس کو وہ دینا حضور کی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خاتم والا تو اچھا یہ تو ایک اب یہاں پر جی ایک ایک کر کے کلیئر کرتے ہیں بہت لغت کی لغت کی طرف وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان مجید کی سورۃ الاحزاب کی 40 آگے آ جائیں اچھا آواز آ رہی ہے نا فیضان بھائی کا میں نے وہ مناظرہ لگایا
जी जी, जबरदस्त आ रही है आप आवाज। पीछे ना जाएं, आगे आ जाएं। आप पीछे जाकर अगर आप बात करेंगे सुनाई नहीं आता है। यार जुनैद 1 मिनट देखो बस, इसको ठीक है? 1 मिनट वीडियो देखना, मैं 1 कॉल मिनट करते मारता हैं। हूँ, ओके? हाँ फिर आकर मैं खुद हैंडल है कर सर। लूंगा। ठीक। ठीक है सर। अच्छा बाजी, आप पीछे चली गई हैं, तो आप पीछे जब जाती हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आती। अगर आप आयत पढ़ रही हैं तो आपकी हमें आवाज़ नहीं आ रही भाई। बाजी ऐसे बात नहीं होगी, मैं किसी और बंदे की तरफ चला जाऊंगा, फिर मैं आपको म्यूट कर दूंगा, आपसे फिर कोई बात नहीं होगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा आखिर तक। चलें, आपने नहीं करनी जी। फैजान भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। जी भाई। अच्छा, अभी वो आप गुफ्तगू कर रहे थे कुछ लुगात के ऊपर, तो मुझे एक कैमरा ऑन करने की इजाज़त है? जी अच्छा चलें, ठीक हो गया, बेहतर, शुक्रिया आपका। अच्छा, अभी तो मैं सबसे पहले कुरान पाक की आयत मुबारका पेश करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं मगर वो रसूलुल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। अब इस आयत मुबारका के अंदर से तो ये चीज़ वाज़िह होती है कि आका करीम अलैहिस्सलाम तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं और सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। अब अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि अब आप ये पूछेंगे कि ये ख़त्म नबूवत का तर्जुमा किया किसने, तो मैं आपको ये रेफरेंस सामने दिखाता चलूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 431, इज़ाला अवहाम हिस्सा 2 ठीक है। अब वो क्या लिखा है जी, ये तर्जुमा करके कहते हैं, ये आयत भी साफ अच्छा, दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी फैजान भाई, सल्लल्लाहु फैजान भाई अलैहि वसल्लम। एक मिनट यार, फैजान भाई एक मिनट, इस तहरीर को ऊपर से पढ़ें जरा, पूरी तहरीर पढ़ें। ये देखें, ये कहाँ से पढ़ना? यहाँ से पढ़ लूँ? अच्छा हाँ, यहाँ से शुरू 20वीं करना है। आयत ये है, वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़लुक़ून शैअन व हुम यख़लक़ून अमवातुन गैर अहया व मा यशऊरून अय्याना युबअसून। सूरह अन-नहल अल-जुज़ व नंबर 14। यानी जो लोग बगैर अल्लाह के परस्तिश के पुकारे जाते हैं वो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि आप पैदाशुदा हैं, मर चुके हैं, जिंदा भी तो नहीं हैं और नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। देखो ये आयतें किस कदर सराहत से मसीह और उन सब की वफात की दलालत कर रही हैं जिनको यहूद और नसारा उस बार फिरके अरब के अपना महबूब ठहराते थे और उनसे दुआएं मांगते थे। मगर अब भी आप लोग मसीह इब्न मरियम की वफात के कायल नहीं होते, तो सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि हमें कुरान पाक के मानने में कलाम है, कुरान पाक की आयतें सुनकर फिर वहीं ठहरना जाना, क्या अल्लाह का भला करे। अच्छा, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर है 479 यानी कि 479 त्रियाकुल कुलूब। और इसी तरह पर मेरी पैदाइश हुई, यानी कि जैसा कि मैं अभी लिख चुका हूँ, मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम जन्नत था, और पहले वो लड़की पेट से निकली और बाद उसके मैं निकला, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़का या लड़की नहीं हुआ, और मैं उनके लिए खातिमुल औलाद हूँ, यानी कि औलाद को खत्म करने वाला हूँ। अब ये कहानी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, एक चीज पेश करना, एक सुन तो लेना भाई, ये सुन तो लेना। हेलो, आवाज आ रही है भाई? म्यूट हूं। हेलो भाई, सही आ रही है आपकी बात आ रही है। अच्छा ठीक है फैजान भाई, 20-25 या 15-20 तहरीरें एक साथ पेश कर दोगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी। एक तहरीर के ऊपर बात करते हैं, है ना? ठीक है, मुनासिब रहेगा ना कि भाई एक बात है ये है, यहाँ मतलब बताओ क्या है। रेफरेंस पेश किए हैं, एक मिनट जी, मेरी बात सुने। 2 रेफरेंसेस पेश किए हैं जिनके अंदर मिर्जा साहब ने पहले तर्जुमा खुद किया, खत्म करने वाला नबियों का। ओके ठीक हो गया। दूसरी जगह पर फिर वो उसी अपने वो रेफरेंस के अंदर क्या कहते हैं कि मैं अपने वालिदैन के लिए खातिमुल औलाद हूँ, यानी कि औलाद को खत्म करने वाला हूँ। तो अब ये तो एक अब यहाँ पर जी एक करके क्लियर करते हैं ना यार, बहुत लंबी लुगत की तरफ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं मिर्जा साहब की बात, देखें मिर्जा साहब की बात पेश, एक मिनट बोलने ही नहीं देना है, मेरी बात सुनो, नहीं बोलना हूं। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9 है, तवज्जो कीजिएगा, सफ़ा नंबर 152 है, मननुर रहमान। इसके अंदर वो ना 2 लुगात की किताबों का हवाला दे रहे हैं मिर्जा साहब।
میں نے آپ سے کہا سارے پیش کریں گفتگو کریں آپ گفتگو. آپ کو خود بھی یہ پتا ہے کہ آپ اگر 10-15 حوالے میرے سامنے ایک ساتھ پیش کر دیں گے، ان پر میں جب جواب دوں گا میں تو سن لوں گا آپ کی بات آرام سے، آپ سے نہیں لیکن سنا جائے گا. آپ تو پہلی بات پر ہی مجھے ٹوک کر بس یہی سی بات کر. اچھا بابر بھائی کے نا یہ بڑا مسئلہ آتا ہے ریکارڈنگ میں کہ جب ریکارڈنگ کر رہے ہوتے نا تو بیچ میں وہ براؤزنگ شروع ہو جاتی ہے اور رک جاتی ہے. یہ پتہ نہیں کیا وجہ، ان کے موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کرنا شروع کر دو. کیوں؟ کیونکہ جب تک ایک بات پہ بات کلیئر نہ ہو جائے اگلی بات نہیں کی جاتی. اسی لیے میں کہہ رہا طریقے سے چلو. جب ایک جو آپ نے تحریر پیش کری نا، جب وہ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم دوسری تحریر لیں گے. سمجھ رہے؟ فیضان بھائی، فیضان بھائی، چپ ہو جاؤ چشتی بابا، چپ ہو جاؤ بس ابھی. ہاں جی، بس ایک بات کرتا اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے آپ کے بھائی مرزا صاحب نے خاتم النبیین کا جو ترجمہ کیا ہے وہ نبیوں کا ختم کرنے والا کیا ہے؟ کیا نتیجہ نکالا آپ نے اس سے؟ کلیت النبوت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں مرزا صاحب. دنیا میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب. جی فیضان بھائی، بھائی ٹھہرنے کی بات نہیں، پچھلی یار عجیب آدمی ہو آپ. بات سنیں تو پتا چلے گا نا، آپ بات سنیں تو پتا چلے گا آپ کو. ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، یعنی کہ اولاد کا ختم کرنے والا. اب اگر خاتم الاولاد، اولاد کا ختم کرنے والا مرزا صاحب کے بعد اگر کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ آخری ہیں. تو اب جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ نبیوں کا ختم کرنے والا، وہاں پر نبی نیا کیسے آ گیا؟ اس بات کا جواب. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے. اچھا جو خاتم الاولاد ذرا دکھاؤ وہ عبارت، وہ جو یعنی لگا کر آپ نے الفاظ بڑھائے ہیں وہ مرزا صاحب نے لکھ رکھے ہیں. بہت خوب، ابھی دیکھتے رہے. پر میری پیدائش یعنی جیسا کہ میں اب بھی لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے باہر نکلی. وہ مکمل کہتے ہیں میرے والدین کے گھر خاتم الاولاد کا ترجمہ مرزا. میوٹ ہو گئے بھائی آپ. میوٹ ہو گئے فیضان بھائی آپ. میوٹ کر کے کہتا ہے میوٹ ہو گئے ہو. فیضان بھائی آپ کی بات نہیں آ رہی ہے. معذرت اب آ رہی ہے بات صحیح؟ ہاں جی. اچھا اب میں مرزا صاحب کا ترجمہ دکھانے لگا ہوں کہ انہوں نے خاتم الاولاد کا ترجمہ کیا کیا. روحانی خزائن جلد نمبر 21. وہ نہ کوئی سب کوئی کتاب کھولو وہیں کر. ایک منٹ رکو، وہ جو کتاب ابھی دکھا رہے تھے نا جو آپ نے ابھی جلد نمبر رک جاؤ میری بات سنو، تمہارے حساب سے تھوڑی نہ چلنا ہے بھائی. جلد نمبر 15 دکھائی تھی نا آپ نے، وہ جلد نمبر 15 دکھائی تھی نا، کھولو. خاتم الاولاد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ دیکھیں اسے نزدیک کرنا، انہوں نے خود
तर्जुमा ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ औलाद का क्या माना बताया अबे बात तो सुनो यार मेरी, मुझे तो बोलने नहीं दे रहे यार आप। ये क्या तरीका है यार तुम्हारा गुफ्तगू करने का? जिल्द नंबर 15 निकालो जरा, फिर इसका बराही हमदे का जवाब देता हूँ। जिल्द नंबर 21 का जवाब देता हूँ आपको। निकालो जिल्द नंबर 15, ऑर्डर कैसे इसका अगला सफा पलटो जरा, थोड़ा करीब करो उसको, आगे अगला सफा पलटो ना, अगला सफा पलटो भाई, अगला सफा पलटो। इस इबारत का जवाब किसने देना है? मैं दूंगा ना, दो तुमने टाइम लिया है ना, दो बात सुनी। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि वो थी किताब शाहजी की, तो वो कह रहा था सफ़ा पलटो, तो ज़ाहिर बात है शाहजी ने वो हवाला नहीं दिया होगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, तो कीर भाई मेरी आवाज़ आ रही? वॉइस ओके, लेकिन कोई बोल नहीं रहा मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अब क्योंकि वो कह रहा था सफ़ा पलटो, तो वो किताब है उस्ताद मोहतरम की, तो जी सफ़ा, जी आ रही है, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। हाँ सफ़ा जब पलटना है तो ज़ाहिर बात है फैज़ान भाई, ये मुनाजरे में ये काम चलता है। वो नहीं बताना चाह रहे कि ये किताब इस वक्त जो है वो मिर्ज़े काने की नहीं है मेरे पास, बल्कि ये हमारे उस्ताद मोहतरम की है। तो अब आगे फिर वो चलनी थी, बहस होनी थी। चले मैं चलाता हूँ। भाई मेरी बात सुनो। कहाँ सुन, मैंने तो बोला ही कुछ नहीं। अब मेरी बात कौन सी सुनिए। बात सुनी तुमने? मैंने आपकी बात सुनी है, अब मेरी बात कौन सी बात सुनी? तो आपने कहा कि खातिमुल औलाद का तर्जुमा मिर्जा साहब ने कहां पर किया? ओ अल्लाह के बंदे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या सुन लिया तुमने? अब बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अजीब बात नहीं हो यार। खातिमुल औलाद का तर्जुमा इसे मिर्जा म्यूट करो साहब ने जरा, कहां मैं पर दिखाता किया? हूं। ये नहीं दिखाएगा, मैंने वो ये खातिमुल नहीं दिखाया, औलाद मैं का दिखाता तर्जुमा हूं दिखाया मिर्जा कि साहब ने। हाँ अभी दिखाता हूं, वो तर्जुमा नहीं है मिर्जा साहब ने जो किया है, मैं मैंने दिखाता हूं। खातिमुल औलाद का अभी तर्जुमा दिखाता हूं ना, दिखाया। मैं अभी दिखाता हूं, सब्र करो ना। जिल्द नंबर 15 है, सफा नंबर कौन सा है जरा बताओ मुझे। दिखा नहीं रहा है लोगों को यार। सफा नंबर 479। हाँ 479 ना, मैं दिखाता हूँ तुझे। अब 21वीं जिल्द के अंदर मिर्जा साहब खुद अभी उसका 21वीं तर्जुमा जिल्द कर पर रहे हैं कि मैं पहले जिल्द अपने नंबर वालिद 15 के पेश लिए करी थी ना, और 15 नंबर पेश करी थी ना पहले जिल्द नंबर, उसको तो क्लियर कर दो। खातिमुल औलाद का तर्जुमा नहीं देना, खातिमुल अभी औलाद का अभी तर्जुमा दिखा रहा हूँ, खातुमुल औलाद का ही तर्जुमा दिखा रहा हूँ। फिक्र क्यों कर रहे हो तुम? अभी फिक्र क्यों कर रहे हो तुम? अभी फिक्र क्यों कर रहे हो? पहले जिल्द नंबर 15 दिखाई थी ना, जिल्द नंबर 15 दिखाता हूँ पहले तुम्हें मैं। नहीं दिखा रहे हैं वहां से जानबूझकर, कि लोगों को पता चल जाएगा मिर्जा साहब ने क्या तर्जुमा किया है वहां। मिर्जा साहब ने 21वीं जिल्द के अंदर क्या तर्जुमा किया वो नहीं पढ़ा। अभी बताऊंगा ना, मैं अभी बताऊंगा। 21वीं जिल्द पर बताऊंगा, 15वीं जिल्द तो बंद करवा दूं तुम्हारे से पहले, मैं ताकि दोबारा ना अच्छा, खुले। ये माइक लिखा एक करें, अभी ये तो गलत बात है ना। हाँ तो आप सुने ना खामोशी से, जैसे मैंने सुना। ये है जी जिल्द नंबर 15, ये इन्होंने 479 पेश किया था सफा नंबर, ये है 479 जहां से इन्होंने वो इबारत पेश करी थी। और ये है मिर्जा साहब ने यहाँ वो लफ्ज खातुमुल औलाद इस्तेमाल किया है, फहुआ खातुमुल औलाद। यहाँ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खातुमुल औलाद का जो है ना वो लफ्ज इस्तेमाल किया, ये शेख इब्न अरबी का जो है ना वो कश्फ नकल करके। उसके साथ मिर्जा साहब ने जब इसका तर्जुमा किया कि शेख इब्न अरबी ने ये बात बयान फरमाई थी, और उसको वो सामने शो करवाएं, शो करवाएं। ये दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। और ये तो वो इबारत ही नहीं है, ये तो वो इबारत ही नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। कहां पर इबारत नहीं है? ये तो वो इबारत ही नहीं है। कौन सी इबारत है? यहाँ तो तर्जुमा है नहीं, यहाँ तर्जुमा है, मुगल का तर्जुमा हो रहा है। अरे ये है ना नीचे, ये तर्जुमा है 479 पर तर्जुमा है। 479 पर तर्जुमा किया मिर्जा साहब ने, 479 पर तर्जुमा किया मिर्जा साहब ने, जगह हाथ डाल दिया आपने। 479 पर तर्जुमा किया। वो इबारत ही नहीं जो मैंने पेश की है। अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ, बात सुनो ना मेरी, इधर खामोशी
से म्यूट ना खामोशी करें। से बात सुने अगर ना। ऐसे ही आपने अभी मुझे किसी और अभी सुन लो अभी बात। अगर तो यही हजरत अभी रुक जाओ ना। मिर्जा साहब आपने खुद को खातुमुल यार, औलाद एक कहा है। मिनट मुकम्मल हो रहा है। नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई ना। आपकी बात मैंने सुनी ना। सिर्फ मुझे 1 मिनट दे। एक मिनट रुको ना, 1 मिनट रुको, बात सुनो मेरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ जब तक एक मेरी मिनट बात दें मुझे। जब तक मेरी बात अगर कंप्लीट तो नहीं होगी, नहीं, ये- जब तक मेरी बात, इन्हें म्यूट कर देना ना, जब तक मेरी बात कंप्लीट और नहीं। खातुमुल औलाद का तर्जुमा यहां कर रखा है मिर्जा साहब ने उर्दू में तर्जुमा। वहां मिर्जा साहब ने सिर्फ खुद को खातुमुल औलाद कहा, लेकिन खातुमुल औलाद किन मायनों में कहा उसका कोई जिक्र नहीं मिर्जा साहब ने किया वहां कि भाई इसका ये तर्जुमा है। यहां अब किया है आपकी मिर्जा बात साहब ने मुकम्मल तर्जुमा। होगी, अब मुझे बात करने दें। हाँ जी, हाँ बताइए। बताइए जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर भी हमें तो आ रही है। फैजान साहब, अब तो ये भी नहीं कह सकते आप म्यूट हो गए। वो धोखा जो लोगों को दे रहे थे आप, वो आ गया है सबके सामने। वो भाग गए, देखो वो भाग गए जनाब पतली से। कहते हैं जी वो दूसरे सफे से पेश कर रहे हो तर्जुमा। यहां कौन सा तर्जुमा पेश कर रखा भाई मिर्जा साहब ने, जरा बताओगे मुझे? मिर्जा साहब ने कहा मैं अपने वालिद के घर खातुमुल औलाद था, बस इतनी बात कही मिर्जा साहब ने। खातुमुल औलाद का तर्जुमा कहां बताया मिर्जा साहब ने कि भाई खातुमुल औलाद का तर्जुमा ये है? यहां बताया है मिर्जा साहब ने तर्जुमा उसका। बिल्कुल खातुमुल औलाद का अल्फाज इस्तेमाल किया, और फिर नीचे तर्जुमा लिखा उसका। और ये इस फिक्रा के ये भी ये वाला दिखा दे आप। क्या इस पेज पे क्या क्या दिखा दूं? ये है ना, देखें उसकी वफात के बाद, ये है ना, देखें। नहीं नहीं ये खातुमुल औलाद के बाद जो फिक्रा है ना, वलदन फी हाज़िहि नौ। सुनो ना, बात सुनो ना। क्या? अभी आखिरी माना किया कि नहीं? अबे यार नेटवर्क सही कर ले तू, अपने बात तो सुनता नहीं। हाँ, आखिरी मिर्जा साहब ने इन मायनों में लिया नेटवर्क कि ठीक है। अभी सुनो ना बात मेरी। अब मिर्जा साहब ने आगे लिखा है, मैं सुनता हूँ। अब कंप्लीट सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हाँ, मिर्जा साहब ने बताया जी, कि जी, उसके जी, जरिए बात करें। आके उसके जरिए से फिर उसकी नस्ल आगे चलेगी, उसके वालिदैन की नस्ल नहीं खत्म करी मिर्जा साहब ने। इन मायनों में अगर रसूल अल्लाह को आखिरी मानते हो तो वो मैं भी मानता हूं कि दुनिया की दूसरी अकवाम से, सुनो इधर, दुनिया की दूसरी अकवाम से नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अब रसूल अल्लाह के जरिए से चलेगा। आप तो ये फिक्रा देख लेना, आखिरी का माना कौन किया सा कि फिक्रा? नहीं? हाँ तो ठीक है, किया है। जिन मायनों में मिर्जा साहब ने किया है उन मायनों में ले लो। चलो ये आखिर का माना इसने किधर से किया है, आप मुझे ये बताएं। खातम का माना इसने आखिर से किधर किया है, खातमुल औलाद का? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि शरीयत के लिहाज से आखिरी नबी है ना, मानते हो आप इस लिहाज को, इस चीज को मानते हो? अभी फैजान भाई किधर गए? उसको उतार दिया फैजान भाई को? पता नहीं, मैंने शुरू से नहीं देखा था। अभी उनकी आवाज नहीं, फैजान भाई की आवाज नहीं आ रही थी। मैं लाइट चली गई। आ गया ना अभी?
کہتے ہیں لائٹ چلی گئی تھی تو اب دوبارہ آپ کب آئے پھر؟ یہ دوبارہ آ گئے ہیں. چلے سننا بات سننا، میری طرف لائٹ چلے گئی تھی تو اس کوئی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اچھا ہے. اب بابر بھائی یہ ریکارڈنگ ہوتے ہوتے نا براؤزنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ براؤزنگ کیوں ہوتی ہے؟ ریکارڈنگ بھی رک جاتی ہے، حالانکہ یہ تو انٹرنیٹ کے بغیر ہوتی ہے ریکارڈنگ. اس کی تائید کیا ہے؟ اب وہ سنیں ذرا. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 123 تحفہ گولڑویہ لاسٹ یعنی کہ تھرڈ لاسٹ لائن کہتے ہیں قرآن شریف میں 12 موصلی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا. ٹھیک، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سب سے آخری. اب ایک آخری حوالہ سن لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 چشمہ معرفت. حاشیے میں کیا لکھتے ہیں کہ میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا. ہو گیا. روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ صرف لاسٹ فائدہ کچھ نہیں ہے. میں دوبارہ سے ایک ایک کر کے ہی پیش کرواؤں گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی کوئی مسئلہ. کیونکہ آپ نے وہ حوالے جلد نمبر 3 صفحہ 170 ازالہ اوہام حصہ اول، اس کی تھرڈ لائن سیکنڈ سے لے کے تھرڈ لائن کہتے ہیں اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے. اب اس کا کیا معنی؟ خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا تمام آسمانی کتابوں کو. خاتم یہ لکھ رکھا ہے انہوں نے وہاں، خاتم یہ لکھ رکھا ہے وہاں کے خاتم الکتب کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں خاتم کتب سماوی. اچھا خاتم کتب سماوی کا کیا مطلب ہوگا آپ بتا دیں. بتا دوں یہ میں آپ پہ چھوڑوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو لغت سے دکھاؤں گا کہ مرزا صاحب نے کن لغت کے حوالے دیے ہیں اور ان لغت کے اندر کیا کیا تراجم ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو سب سے پہلے آپ نے حوالہ پیش کرا تھا وہ پیش کر دیجیے ایک ایک کر کے. بات کچھ نہیں ہوگی، بات وہی ہوگی. آپ نے تو وہاں کتاب رکھ رکھی تھی صاحب نے کہ ہاں بھائی مرزا صاحب نے ان جگہوں پر، آپ نے تو ایک ایک کر کے بیان کر دیا. ہاں جلد 21 کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ جلد 21 نکالیں. ہاں ٹھیک ہے بتائیے. اچھا صفحہ 113 ایک منٹ رکے. فیضان بھائی چشتی صاحب رک دیں، آپ مشورہ نہ دیں، ان کو پتا ہے بات کیسے کرنی ہے. بھائی آپ اپنا میوٹ رکھیں. بھائی جب باقیوں کو منع کر رہے ہو نا تو آپ کو کروں گا. بھائی بعد میں پرسنل جا کے جو بات آپ نے کرنی ہوگی وہ کر لینا. ہم بھی چشتی ہیں، بے فکر ہو جائیں. ہاں جی براہ نعم کا حصہ بن جاؤ. صفحہ نمبر حصہ تنظم روحانی خزائن جلد 21 ٹھیک. یہی ہے جی پڑھیں. اچھا جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یعنی تیرا میرے نزدیک وہ مقام ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. یہ جواب اسی قسم کا ہے جیسا کہ آدم کی نسبت قرآن شریف میں ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، بلکہ یہی آیت بینہ ہی اگرچہ براہین احمدیہ کے حسد سابقہ میں نہیں مگر دوسری کتابوں میں میری نسبت بھی وحی الہی ہو کر شائع ہو چکی ہیں. تیسری آدم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا اور میں بھی توام پیدا ہوا. پہلے لڑکی پیدا ہوئی بعد میں اور یوں ہی میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا. اور اسی طرح یعنی کہ میں ایک منٹ کیا پڑھا ہے یہ لفظ دوبارہ پڑھیے گا. یہ والا بعدہ کے بعد جو ہے ہوئی اور بعدہ اور میں بائنہما ہوں، میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا. میرے والد
میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور میں جمعہ کے روز پیدا ہوا تھا اور آدم کا حوا سے پہلے پیدا ہونا اس بات کی طرف نہیں پڑھا اشارہ جا تھا رہا کہ تو کوشش بھی نہ کریں, میں پڑھ دیتا ہوں, بے فکر ہو جائیں. نہیں پڑھا جا رہا, میں پڑھ دیتا ہوں. فیضان بھائی میں پڑھ دیتا ہوں, ٹھہر جائیں. آپ کے پاس پورا کھلا ہوا ہے نا, میں موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں نا. جی میں نے کہا آپ کے بس کا نہیں ہے لفظ پڑھنا, میں پڑھ دیتا ہوں. اس کا مطلب اس کا کیا, اس کا ترجمہ ہے یہ, اور بَعِیْہَمَا بَعِیْہَمَا اصل لفظ ہے بَعِیْہَمَا, ٹھیک ہے. ہاں تو ٹھیک یہ اصل کیا لفظ ہوگا ہے. اس اب میں؟ آگے پڑھیں ایک بار. اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا, میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ بھئی میں خاتم الولد تھا, اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ ہے اس کا ترجمہ خاتم الولد کا, یہ ترجمہ بتا رہے ہیں مرزا صاحب. نہیں, آپ نے کم از کم مرزا صاحب کی کتابیں تو صحیح پڑھے نا. اب ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پاک کے اندر غلطی ہو جائے ہم تو اگلے بندے کو ٹوک دیتے ہیں. نہیں, یہ ترجمہ جو فی نفسی ہی بات ہے نا, بتایا میں نے آپ کو کہ موبائل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آگے پڑھیں, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا, میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو مرزا صاحب نے یہ خاتم الولد کا ترجمہ بتایا آگے کہ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. اب ٹھہر جائیں, اب حوصلہ. اب پیچھے جو 15ویں جلد کا حوالہ دکھایا تو اس کے اندر کیا تھا, میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. آپ نے کہا جی اس کا کیا معنی ہوا, خاتم الاولاد تھا. اب اس کا ہی ترجمہ مرزا صاحب جو ہے وہ آگے اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب ترجمہ کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں ہوا پیدا. اپنے والد کے لیے خاتم الاولاد کا مطلب یہ ہے میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. خاتم الاولاد کا یہ ترجمہ بنے گا. نہیں ہوا تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اور سن لو نا بات, ایک منٹ سن تو لو نا, بات سنو نا بھائی. نہیں, مرزا صاحب نے تو نہیں کہا کہ یہ ترجمہ ہے اس کا. مرزا صاحب نے تو یہ کہا کہ میں خاتم الولد ہوں. اس کے بعد پھر مرزا صاحب نے لکھا میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. سن لینا, سن تو لینا, ارے سن لینا, پڑھ تو رہا ہوں بھائی. ہو بھائی بات سنو نا, ادھر بات سنیے ایک منٹ. مرزا صاحب نے کہا کہ میں خاتم الولد تھا اپنے والدین کے یہاں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میرے والدین کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ حالت بتائی ہے کہ بھئی میرے والدین کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, لیکن خاتم الاولاد کا یہ مطلب ہے کہ میرے بچے کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ نہیں مرزا صاحب نے کہا ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ اپنے والدین کے خاتم الاولاد تھا. پچھلی عبارت سے کوئی ربط ہے کہ نہیں, کوئی ربط ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. کس عبارت کا, کس عبارت کا؟ یہ جو دو لائنیں آپ الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ ان دونوں لائنوں کا آپس میں ربط ہے کہ نہیں. ہاں بالکل ربط ہے, لیکن ترجمہ نہیں ہے. وہ ترجمہ نہیں ہے, ربط ہے. ربط تو ہر بات کا دوسری بات سے ہے. اب وہ میں سمجھاتا ہوں, اور سیفی صاحب میں سمجھاتا ہوں اب آپ کو. آپ سے تو عبارت نہیں صحیح پڑھی جا رہی, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب سنیں, وہ کہہ رہے ہیں اور بَعِیْہَمَا میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا. خاتم الولد تھا. اور ٹھہر جو جناب, حوصلہ کریں, حوصلہ کریں. خاتم الولد تھا. اب ختم الولد نہیں ہے, خواہ ہے. اردو تو صحیح سے پڑھ لو بھائی, مجھے بتاتے ختم الولد نہیں ہے. خاتم تم بتاؤ گے مجھے اردو. اب پڑھا ختم, اب پڑھ رہے ہیں پہلے تو ختم. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا. ہاں اور خواہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا. تمہیں پتا ہے, وہ دکھ رہا ہے ختم پڑھ رہے ہو, ختم الولد. تم بتا رہے ہو مخرج یہاں مجھے. اور خاتم الولد بھائی, اب آپ نے ایسے کرنا, مجھے پتا ہے. اب آپ نے ایسے کرنا, تم ہی کر رہے ہو ایسا. ہاں ٹھیک. خاتم الولد تھا, میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اب مرزا صاحب پچھلی عبارت کی آگے وضاحت کر رہے ہیں. پچھلی عبارت کا ربط اگلی عبارت سے ہے. مرزا صاحب پچھلی عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں اپنی اگلی عبارت میں کہ وہ جو خاتم الولد میں نے فرمایا اس کا معنی کیا ہے. نہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابھی بتا رہا ہوں کہ اس عبارت کا ربط پچھلی عبارت سے مل رہا ہے. اور ربط ہے, ساری عبارتوں کا ایک ربط ہے. اگر ربط ایک رک جانا, بات سنو نا, میری بات سنو نا.
हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो बात बयान फरमा रहे हैं वो एक रब्त में ही बयान फरमा रहे हैं, एक ठहर जाएं। अब रुक जाओ कंप्लीट होने दो ना, कंप्लीट होने दो। ਤੁਸੀਂ बोल लो हाँ, ये जो और मैं जुमे के रोज पैदा हुआ, ठीक है, ये बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पिछली बात से वाबस्ता करके ही बता रहे, लेकिन बात अलग है। इस बात का अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम जी, खुर्रम भाई तैफी भाई, ये जो असल खातमुल वल्द था, ये एक बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बताई, फिर बता। अच्छा, अब बंदा चढ़ गया ऊपर, एम्बुलेंस चढ़ गई है ऊपर, खुरम नाम का बंदा है और एम्बुलेंस चढ़ गई है वो अब ना बचाएगा इसको आके, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बताया मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, ये एक तसलसल चल रहा है बात का, और मैं जुमे के रोज पैदा हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन तसलसल पिछली बात से ही है, कोई अलग से बात बयान नहीं कर रहे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, तसलसल एक ही है बात का, ये तर्जुमा नहीं कर रहे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का खातमुल वल्द करने दें। हाँ जी जी, आपने तकरीर कर ली है ना, मेरी बात करने दें, अब ठहर जाएं। वो फिर कह रहे हैं और बाई हमा मैं अपने वालिद के लिए खातमुल वल्द था, मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ठीक, अब इस इबारत का पिछली आगे तो पढ़ो ना, है, इससे भी आगे तो पढ़ो ना, सुन तो लो ना, आगे वाली बात, भाई आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अब आपकी बात में चुप रहा ना, अब मेरी बात में बोलने। वो कह रहे कि खातमुल वल्द था, मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब वो बहुत रुकती है रिकॉर्डिंग। खातमुल वल्द किसकी बात कर रहे हैं? अपने वालिद की, और फिर आगे भी अपनी ही बात कर रहे हैं कि मेरे वालिद का कोई बच्चा पैदा नहीं। उसका मतलब यही है कि जो खातमुल वल्द है उसका माना यही बनता है कि मैं आखिरी। ये तो आप कह रहे हो ना भाई, ये तो आप कह रहे हो ना, ये हाँ तो नहीं, ये आप कह रहे हो ना, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपने वालिद का खातमुल औलाद था, मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और जुमे के रोज में पैदा हुआ। ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक सिलसिले के ताल्लुक से बात बताई है, एक सिलसिला है ये इन बातों का। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तर्जुमे नहीं बता रहे, जैसे हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद को खातमुल औलाद कहा। ऐसा कर ठीक है, हाँ 2-2 मिनट रख लेते हैं, एक बात बोल आधा मिनट रह गया, 1.5 मिनट बोल चुके हैं। 1 मिनट, ये अब ना मैं बताता हूँ। दूसरा ट्रिक ये है इसका कि अब चूंकि 2-2 मिनट रखे जाएं, 2-2 मिनट में क्या होगा कि वो अपने मिनट में वो उसकी बातों का जवाब दे या ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जवाब दे या ना दे अपनी अपनी टर्न में। अब ये खेल खेलने लगा, ये जो मुझे समझ आई, अब देखते क्या करता है। अभी तो शुरू किया है तुमने, ये इस हिसाब से तो तुम्हारे 2 मिनट पहले पूरे हो गए, अब तुम्हें अगले 2 मिनट नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम पहले 2 मिनट बोल चुके हो। अब से शुरू कर रहा है, तो अब स्टार्ट करो ना। 4 मिनट बोलना, मैं 2 मिनट बोल लूंगा, ठीक है? आप 4 मैं कह रहा हूं तुम, मैं 4 मिनट बात ही नहीं है। उनके घर में कोई औलाद पैदा नहीं हुई, ये एक अलग बात बताई हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, और उसी तसलसल में मजीद ये बात बताई और मैं जुमे के रोज पैदा हुआ था, और करके बताई हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब बताइए क्या कहना आपने। जुनैद टाइमर लगा दो। अब मैं बोल लूं या टाइमर लगा ले, फिर करते हैं टाइमर लगा। पहले आपके टाइमर लगा दो। चलो लग गया टाइमर, लग गया भाई, लग गया। अच्छा जी, अब वहाँ पर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैं अपने वालिदैन के लिए खातमुल वल्द था। फिर आगे क्या कहते हैं, मेरे बाद को है मेरे वालिदैन के घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब मुझे बताएं, अगर खातमुल वल्द का मतलब ये नहीं बनता कि उनके हाँ फिर आगे वो उस इबारत की तस्रीह भी कर रहे हैं। पिछली इबारत का रब्त जब अगली इबारत से बन रहा है तो पिछली इबारत की वहां पर तस्रीह भी हो रही है कि इसका माना क्या है, कि खातमुल वल्द का माना क्या है कि मैं अपने वालिदैन के यहाँ जो है सबसे आखिर में आया हूँ और मेरे बाद जो है वो कोई बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ।
तो अब खातमुल वल्द का तो माना ऑटोमेटिकली जाहिर हो गया। जब इबारत का रब्त अगली इबारत से बन रहा है तो आप किस तरह एक सरी इबारत के अंदर तावील फासिद कर रहे हैं बैठकर। आप बताएं ना किस तरह आप एक सरी इबारत है, इबारत एक सराहत के साथ मौजूद है, अब आप उसके अंदर तावील कर रहे हैं, और तावील भी वो जो तावील बईद है, जो एक आमी शख्स रखने वाला, जो एक आमी ज़हनियत रखने वाला बंदा, एक आमी इल्म रखने वाले बंदे को भी, अगर कोई उर्दू का लिटरेचर पढ़ने वाला बंदा होगा, उससे भी समझ लग जाएगी कि इस पिछली इबारत का अगली इबारत से रब्त मौजूद है। तो जब रब्त मौजूद आ गया, सिर्फ उर्दू लिटरेचर की बात कर रहा हूँ जो आपको भी सदा पढ़ना भी नहीं आता, उसकी बात कर रहा हूँ कि जब उसकी इबारत मौजूद है तो फिर उसके अंदर तावील कैसे कर ली, इस बात का जवाब। मैंने कोई तावील नहीं करी। जो टाइम लगाओ जरा। जी सादिक भाई लगा लिया मैंने टाइम। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की एक इबारत पढ़ी जिसमें हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने वालिद के लिए खातमुल वल्द था। ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक बात लिखी कि खातमुल वल्द था। उसके बाद आपने कहा कि मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक तसलसल बयान किया। उसके बाद ये बात बताई कि मेरे वालिद के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहीं ये नहीं कहा कि भाई ये इसका तर्जुमा है, या यानी के अल्फाज लेकर बताया हो, या तर्जुमे के अल्फाज बीच में डालकर बताया हो कि भाई ये इसका तर्जुमा है। समझे? उसके बाद हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इसी तसलसल में और डालकर, और मैं जुमे के रोज पैदा हुआ। अब ये देखे, जो और होता है ना, ये जोड़ता है दो बातों को। मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और मैं जुमे के रोज पैदा हुआ था, तो क्या खातमुल वल्द का ये तर्जुमा बनेगा कि वो बच्चा जो जुमे के रोज पैदा हो, ये बनेगा इसका तर्जुमा? नहीं। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक बात अलग बयान करी, जब खातमुल वल्द खुद को कहा वो बात एक अलग बयान करी। उसी के तसलसल में मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये बात एक अलग बयान करी, और मैं जुमे के रोज पैदा हुआ था, ये बात एक अलग बयान करी। तसलसल एक ही है, ठीक है, गुफ्तगू का। हाँ, क्या नाम, ये जो मैंने इबारत आपके सामने अभी पेश करी थी, जिसके अंदर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खातमुल औलाद के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये जो जिल्द नंबर 15 से आपने पेश की, वहां हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उसका तर्जुमा पेश किया और बताया हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कि ये इसका मतलब है कि कामिल बच्चा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का तर्जुमा मौजूद है। जब हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने तर्जुमे की खुद वजाहत कर दी, तो किसी को हाशिए चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई तावील करने की जरूरत है। आपकी ये जिद है कि यहां तर्जुमा बयान किया है, मेरा ये कहना है कि यहां तर्जुमा बयान नहीं किया। हाँ जी जी मैं फिर दोबारा अपनी उसी टाइम लगा दें पहले। जी मैं दोबारा अपनी उसी इबारत की तरफ आऊंगा जो मैंने सबसे पहले, जो मैंने दूसरे नंबर पर पेश की थी जिल्द नंबर 15 से, कि मिर्जा साहब कहते हैं कि इसी तरह पर मेरी पैदाइश हुई, यानी जैसा कि वो इबारत मुकम्मल करके कि मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़का लड़की नहीं हुआ और मैं उनके लिए खातमुल औलाद था। अब पीछे वो क्या कह रहे हैं, कोई लड़का लड़की पैदा नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं मैं उनके लिए खातमुल औलाद था। और फिर वो अगली जो 21 नंबर जिल्द है उसके अंदर कहते हैं और बाई हमा, मैं अपने वालिद के लिए खातमुल वलद हूँ। अब खातमुल वलद का क्या मानना है? पिछली इबारत के अंदर उन्होंने कह दिया था कि मेरे बाद कोई लड़का या लड़की पैदा नहीं हुआ, वहां पर भी वही बात की, जहां पर भी वही बात की। फिर आगे क्या कहते हैं, मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब आपने भी तस्लीम किया कि इस इबारत का रब्त पिछली इबारत से मिल रहा है, तो जब इबारत का रब्त इबारत से मिल रहा हो तो मुझे बताएं कि एक सरी इबारत है और सरी इबारत के अंदर आप तावील फासिद कर रहे हैं। ये तावील फासिद वाली बात ठीक। अब वही बात दरमियान में नहीं बोलना, ना दरमियान में नहीं बोलना। ठीक, कंप्लीट जो टाइम है आपका। ठीक, मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब यही वो इबारत है जिसका रब्त पिछली से बन रहा है और खातमुल वल्द का मानना इस इबारत के अंदर से वाज़ेह हो गया कि जिसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो जब मिर्जा साहब आखिर थे और खातमुल वलद ठहरे, इसका मतलब है मिर्जा साहब के बाद कोई जो है वो आगे पैदा नहीं हुआ, मिर्जा साहब का कोई भाई वगैरह। तो जब ये चीज साबित हो गई, एक इबारत नस्से कतई साबित हो चुकी है आपकी किताब से, अब आप उसके अंदर तावील फासिद कैसे कर रहे हैं? ये तो एक आम कोई लिटरेचर पढ़ने वाला, उर्दू लिटरेचर पढ़ने वाला बंदा हो, उसे भी समझ लग जाती है कि ये चीज क्या है। अब आप उसके अंदर कहें नहीं जी ऐसा नहीं कहा तो वैसा नहीं कहा, तो ये बिल्कुल आपकी तावील फासिद है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जिस चीज का तर्जुमा खुद पेश कर दिया है,
तर्जुमा खुद पेश कर दिया है, मुझे ना तावील करने की जरूरत है, फासिद होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये जो आप तिगड़म लड़ा रहे हैं ना कि मुतकल्लम के बताए हुए मायना को छोड़कर अपना जो आप मायना घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुनिया का कोई उसूल इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर ये उसूल राइज होता तो फिर हिंदुओं के भी तर्जुमे माने जाते। हिंदुओं ने जो एतराज करके कुरान करीम की आयत पर तरह तरह की बातें उसकी तरफ मंसूब करी है, वो भी फिर सही तस्लीम की जाती। लेकिन जो बात मुतकल्लम खुद बता दे कि भाई मेरे कलाम करने का ये मतलब है या मेरी फला बात का वो मतलब है, वो सही माना जाता है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है कि मैं अपने वालिदैन के घर खातमुल औलाद था। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चूंकि मेरे वालिदैन के घर कोई और बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, और इस वजह से मैं खातमुल औलाद हूं क्योंकि उनके घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ये नहीं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि मैं अपने वालिदैन के घर खातमुल औलाद हूं, मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये एक अलग बात है कि कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन खातमुल औलाद का जो सही तर्जुमा है, जो मैंने जिल्द 15 से दिखाया, जिसे फैज़ान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो मौजूद हैं तो मैसेज कीजिएगा। मौजूद हैं आप? फैज़ान भाई मौजूद हैं? कहता है कामल बच्चा, कामल बच्चा क्या कहता है कि कामल बच्चा पैदा हुआ है। कुत्ते का बच्चा। भाई कामल बच्चा पैदा हुआ है, इसका मतलब वो उसी पर मैं और हवाला जात ना देने लगा था इन्हीं के घर से ही। यार आपको हवाला याद है जिल्द 22 का कौन सा सफा कहा था? मुझे एक चीज़ ना खुटकी है बीच में, वो मैंने देखनी है। वालेकुम सलाम सिद्धू भाई। चलें, मुझे लगता है फैज़ान भाई मौजूद नहीं है। अब मुझे जहाँ तक लगता है आगे डिबेट जो है ना मैंने सुनी, सुनते हैं बाद में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे सब भाई? उस्मान भाई, जौलक भाई, अब्दुल हसन भाई, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक यार। सिद्धू जट साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप वो सुनाइए कैसे? ABR को कोई बालों से पकड़ कर थ्रो के लेके आए किसी जगह पे, उसे कहे मुझसे मुनाजरा करे, किसी जिस मर्जी मौजू पे बात करना चाहे वो बात करे मुझसे। क्या ख्याल है? उस्मान भाई मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा। देखें आपके सामने मैंने उसका मेरे लिए आप चैलेंज भी मोहतरम हैं। मैंने उसका चैलेंज उसी वक्त कबूल किया था ना। मैंने कहा था ठीक है तुम ले आओ जो उनसी मर्ज़ी इबारत ले आओ, मौजू मारा, मैं देवबंदियत को कादियानियत साबित करूँगा। और जो जो तुम लोगों ने किया और कादियानियत को प्रमोट किया और उन्हें अपनी तहरीरात के ज़रिए से तुम लोगों ने बढ़ने दिया, और वही जो इबारत तुमने लिखी वही उसने कोड की हैं, तो उसने कहा ये आला हज़रत ने नबूवत का दरवाज़ा खोला। मैंने उसी वक्त चैलेंज कबूल किया कि आ जाओ और आकर बात करो, ताकि लोगों को धोखे में तो ना रखो ना हम धोखे में रखना चाहते हैं ना वो रखें, और इसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। साथ ही वो भाग गया था, तो उसको मनाएं किसी तरीके से, उसको चले किसी दिन ठुड्डा मार के ही ले आएँ धोखे से, यानी कि हमें ठुड्डा मार दें कि आ जाओ उधर मुफ्ती साहब आपकी ज़रूरत पड़ गई है। उधर साथ ही न्यूट्रल ब्राड होगी और शराइत तय करके बात शुरू कर देंगे। उस्मान भाई मैं माजरत के साथ, मेरे लिए आप बड़े मोहतरम हैं, सारे उलमाए दीन जितने भी हैं मोहतरम हैं। मैं इस मसले से अब आउट ही हो गया हूँ। मैंने कोशिश की थी कि अगर किसी मफाहमत की तरफ ये बात ख़त्म हो जाती, लेकिन अब अगर नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा तो जो मोटिव है वो ख़त्म नबूवत वाला काम है। कल रात को आपको पता क्या हुआ? फैज़ान भाई ने बताया। जी क्या हुआ? क्या हुआ? वो सादे मोहतरम है। उस्ताद मोहतरम मदीना में है इस वक्त, उधर मक्का में। हो सकता लाइव चल जाए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद मुकर्रम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? जी जी उस्ताद मुकर्रम। हाँ ठीक हो गया माशाल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है? बाबर भाई बैठे हुए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे ख्याल से। सही है। लो भाई में मौजूद हूँ मैं।